What is speed and velocity? What is speed? Speed of an object is the rate at which it is moving. Speed of an object is the rate at which it is moving. What is the definition of speed? If the body covers the distance, what is the definition of speed? The distance covered by a body in unit time is called its speed. The distance covered by a body in unit time is called its speed. What is unit time? Unit time may be 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 year. So the distance covered by a body in unit time is called its speed. Speed is represented by V. And how we can calculate speed? You can see the formula of speed on screen. Speed is equal to distance covered divided by time. Speed involves distance. Distance is a scalar quantity. So speed is a scalar quantity. What is the unit of speed? The unit of speed is meter per second. How we can say the unit of speed is meter per second? Just observe the formula of speed. Speed is equal to distance over time. The unit of distance is meter. The unit of time is second. So the unit of speed is meter per second. यानी इकाई वक्त में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं. किसी भी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं. और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर हमने स्पीड को मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या है कि कुल तय करदा फासला और उसको तकसीम कर देना है हमने कुल वक्त से. और स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है. व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, the speed of the body is called uniform, how short the intervals may be. मैंने आपको बताया कि अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे तो उस जिस्म की स्पीड को यूनिफॉर्म कहा जाएगा. अब ये वक्त के वक्फे कितने ही कलील हो, 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 साल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. And if the body covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed. And speed is a scalar quantity because speed involves distance. What is velocity? Velocity not only tells us the speed of a body but also its direction. So velocity is a vector quantity. The rate of displacement is called velocity. The unit of speed is also meter per second, as the unit of velocity is meter per second, as the unit of speed meter per second. But what is the difference between speed and velocity? Direction. Speed involves distance and velocity involves displacement. So speed is a vector, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Both quantities have the same unit meter per second. What is uniform velocity? If a body covers equal displacement in equal interval of time, body possesses uniform velocity. I again repeat, यानी अगर किसी जिस्म के डिस्प्लेसमेंट में वक्त के मसावी वक्फों में मसावी तब्दीली हो, उस जिस्म की जो velocity है वो यूनिफॉर्म कहलाएगी. यानी इफ a body has equal displacement in equal interval of time, how short the interval may be, the velocity of the body is uniform. तो हमने डेफिनेशन देखी, हमने पढ़ा कि पोजीशन क्या है, हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा. अब एक मरतबा मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा रिपीट करता हूँ, फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे. प्लीज़ देखिए पोजीशन क्या है कि पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट. और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ पाथ
बिटवीन 2 पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्पीड क्या है? बॉडी, इफ अ बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरीके से अब आइए हम इसकी मैथमेटिकली एग्जाम्पल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको हम समझाते हैं। तो आइए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो अब आप इस पे गौर करें कि सवाल में आपको इस क्वेश्चन में बता क्या दिया गया, यानी गिवन डाटा क्या है और वो डाटा जो आपने मालूम करना है वो क्या है। स्प्रिंटर कंप्लीट्स इज 100 मीटर। व्हाट इज गिवन डाटा? स्प्रिंटर कंप्लीट्स 100 मीटर। 100 मीटर इज द डिस्टेंस, so we have given distance. Distance is represented by, yes, distance is represented by s. So s is equal to 100 meter. So let again see the question. A sprinter completes 100 meter race in 12 seconds. What is the other given data? 12 second. 12 second is the time, and time is represented by t. So t is equal to 12 second, and we have to find its speed. Speed is equal to, so let see on screen the formula of speed. Speed is equal to distance covered divided by time. Speed represented by s, distance represented by d, and time represented by t. So put the values. Distance value is 100, time value is 12. 100 divided by 10 shows the result of speed equal to 8.33 meter per second. Thus the speed of sprinter is 8.33 meter per second. तो देखें स्टूडेंट, मैंने ये न्यूमेरिकल अभी हल किया। इसमें आप देखें कि गिवन डाटा क्या है, आपको दिया हुआ क्या है, इसमें क्या चीज़ है जो आपको मालूम है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब आप लगा दें एस इज इक्वल टू 100, ओके। दूसरा आपको टाइम दिया हुआ, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी को इक्वल कर दें आप 12 सेकेंड के। अब यहाँ पर आप स्पीड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना कवर्ड किया? 100, तो डिस्टेंस की जगह पर फार्मूले में 100 लगा देंगे और टाइम की जगह पर फार्मूले में 12 ऐड कर देंगे। तो अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे 100 को 12 पे, तो 8.33 आंसर आएगा स्पीड का, यानी स्पीड जो है वो 8.33 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व की। आइए अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड of a circular track of radius 318 meters in 1.5 minutes. Find its speed and velocity. अब आप इसमें ये देखें कि आपको रेडियस दिया है 318 मीटर का और टाइम यहाँ पर मिनट्स में है। याद रखें टाइम हमेशा सेकंड में होगा। मैं बस एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखिए आप कैसे सोल्व होगा ये। गिवन डाटा हमें क्या क्या है? रेडियस, यानी जो ट्रैक, रेडियस ऑफ ट्रैक है वो है 318 मीटर। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन है 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, यानी 1.5 मिनट का क्या मतलब हुआ? 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 सेकेंड, यानी जो टाइम हमें दिया हुआ है वो हुआ 90 सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस कवर्ड करना है, यानी फासला निकालना है। तो अब ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, इस डायग्राम पे आप गौर करें कि ए से बी की तरफ देखें, ये एक सर्कल उसने बनाया हुआ है।
तो ये एक ब्लैक डॉट लगा, ए से इस ब्लैक डॉट का जो डिस्टेंस है वो आर है, और इसी डॉट का बी से जो डिस्टेंस है वो भी आर है। तो ए और बी का कुल फासला जो है वो 2r के बराबर होगा, यानी दायरे के 2 रेडियस के बराबर होगा। अब हमने डिस्टेंस जो कवर निकालना है उसका फार्मूला क्या बनेगा, पाई आर। क्योंकि ये सर्कल की शेप बन गई है तो डिस्टेंस निकालने के लिए पाई आर आएगा। अब पाई की कीमत होती है 3.142, वो पुट कर दें। रेडियस की कीमत हमें दी हुई है 318। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब मालूम क्या करना है हमने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो है ए से बी के दरमियान जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, यानी कि सर्कल के 2 रेडियस 2r के बराबर है डिस्प्लेसमेंट। एक डॉट यानी ओ से लेकर ए का फासला भी r है और ओ से लेकर बी का फासला भी r है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को अगर हम टोटली अगर ए और बी को हम ऐड कर दें तो वो 2r के बराबर फासला बनता है। 2 की जगह 2 पुट करें, r की जगह पर वैल्यू 318 मीटर, तो आंसर आ गया 636। ये हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल गया, लेकिन असल में हमने निकालनी है स्पीड। सो व्हाट इज द फार्मूला स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 999, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि ए से बी के दरमियान कर्व रास्ते से शो की गई है, तो वो आई 999 और टाइम 90 है। 90 डिवाइड किया तो 11.1 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। अब हमने निकालनी है स्पीड। स्पीड का क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है 636 और उसको टाइम पे डिवाइड कर दें 90 पे, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब ये स्पीड जो है वो क्या आई, जब हमने 636 को 90 पे डिवाइड किया तो 7.07 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। इसमें बस देखें, इस क्वेश्चन के अंदर बस आप ये देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। अब ए से बी का ये जो कर्व पाथ है ना, कर्व पाथ, ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कर्व पाथ, ये डिस्टेंस है, क्योंकि इसकी किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो लिहाजा ये क्या बना, ये सर्कल के बराबर बना। ये असल में सर्कल का आधा हिस्सा बन गया है। अब आपको पता है सर्कल का रेडियस भी होता है, ओ से ए का फासला रेडियस है सर्कल का, ओ से बी का फासला भी रेडियस है। अब ये हाफ सर्कल बन गया और हाफ सर्कल 2r के बराबर है। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी स्ट्रेट लाइन है ए और बी के दरमियान, तो वो 2r के बराबर है। तो 2 की जगह 2 और r की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरह इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया है कि डिस्टेंस ए और बी कर्व पाथ से शो किया गया है, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, और ब्लू लाइन जो ए और बी के दरमियान लगी हुई है इससे डिस्प्लेसमेंट को शो किया गया है। ये ब्लू लाइन 2r के बराबर है। मेरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।